हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुरजीत वालिया में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो आज गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने बसंत पंचमी माता सरस्वती से कला, ज्ञान और संगीत की देवी से आशीर्वाद लें। आप लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। और देखें आज गोल्डन फ्लावर में बच्चों ने क्या कहा। Good morning, assembly. So, do you know what is the day today? I know you know. Today is Basant Panchami, and we will be celebrating here. And you can see the children have made kites, and we have a special assembly today. So, I will begin with a few lines. लेकर मौसम की बहार आया बसंत ऋतु का त्योहार, आओ हम सब मिलकर मनाए दिल में भरकर उमंग और प्यार। बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। The festival of Basant Panchami is dedicated to Ma Saraswati, the goddess of wisdom. The goddess symbolizes constant flow of knowledge and wisdom. This festival is also known as the birthday of goddess Saraswati, and especially it is celebrated in the teaching institution, learning institution. Spring is the season where the crops are fully bloomed and we celebrate it by flying kites. Yellow color is given a special significance and it dominates everywhere. Basant Panchami is a festival full of religious, seasonal and social significance. So, before starting of this day, we will start with the warm wishes with you to you, and by lighting the lamp before the goddess Saraswati, I would like to request our MD ma'am along with Principal Sir to enlighten the lamp. Shyam sir, please.
Look in front and get ready for the command. Cool, steady. Attention. Steady. Attention. A beautiful life is one, guided by knowledge and inspired by happiness. With these beautiful lines, a very warm and pleasant morning to one and all present over here. Today, I, Dashmi Kaur, along with the choir group is here to conduct the today's morning ceremony. As prayer is a link which connects us with the Almighty, so I will request Ashwini Kaur for the morning prayer. Join your hands, close your eyes, and start prayer. Oh God, infinity wisdom and source of all knowledge, bless us and help us so that we would like to request Farhan Khan to lead us with the pledge. Are my brothers and sisters, I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well-being and prosperity. Alone lies my happiness. Jai Hind. There are two types of thoughts. One is positive and the other one is negative. So for a positive thought here, I would like to call Akshita. Good morning to you all. The thought of the day is that learning is a treasure which follows its owner everywhere. I repeat my thought of the day, learning is a treasure that follows its owner everywhere. Thank you and have a yellow day. With fragrant flowers and fluttering butterflies around the soft breeze, whispers in your ears. A very glorious and cheerful good morning to you all. Today it's me and Eden Kaur is here to express my views on a special occasion of Basant Panchami. When nature is splendid all around, there is song on every lip and fragrance is in the air. May your beautiful melodies touch your life this Basant Panchami. Basant Panchami, also spelled Basant Panchami, is the festival that marks the preliminary preparations for the arrival of the spring. Fresh gentle breeze disperses the haunting cold and there is a touch of rejuvenation in the air. According to the custom, temples were dedicated to the goddess Saraswati are filled with sacred offerings a day before Basant Panchami with the belief that goddess would join in celebrations by attending traditional feasts the following morning, as it is a festival celebrating Saraswati, the goddess of knowledge, wisdom, music and arts. Yellow color is given special attention and dominates everywhere on this particular day. People usually wear yellow garments as it is associated to goddess Saraswati as well as mustard crop. Yellow sweets are consumed within the families. From the free-flowing bright yellow fields to the humble pottery and plants, everything seems to be bidding goodbye to the winter blues and welcoming the bountiful spring. Spring is the season when crops are fully bloomed, and people also celebrate this occasion by flying kites. Some people also celebrate Basant Panchami a day when goddess Parvati approached Kama to wake up Lord Shiv after long yogic meditation. This festival is also considered very auspicious as it means to usher new beginnings in the life of a child, as kids were taught to write their first words. On this day, people also feed Brahmins with a feeling that they are sustained accepting the food. According to the folklore, snakes are fed with milk to bring wealth and prosperity in the coming days. Really, it's a festival full of seasonal, social and religious significance. At last, I would like to say here that happiness as light as air, love as deep as ocean. Happiness as light as air, love as deep as ocean. Friends as solid as diamond, friends as solid as diamond, and success as bright as gold, and success as bright as gold. These are my warm wishes to you today and every day. Happy Basant Panchami. Thank you and have a nice day. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुप्रभात आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रबंधिका महोदय, प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, समन्वयिका महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं शिवांग पांडे कक्षा 9 का छात्र आप सभी के समक्ष बसंत पंचमी की महिमा का वर्णन करूंगा।
वसंत उत्सव प्रकृति का उत्सव है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, खास कर पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और पूर्वी भारत में। वसंत ऋतु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऋतु नाम कुसुमाकर कहकर ऋतुराज वसंत को अपनी विभूति माना है। वसंत पंचमी से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं। मान्यता अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी जीवा से इसी दिन देवी सरस्वती को प्रकट किया था। इसलिए इस दिन को देवी सरस्वती के प्राकट्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। देवी सरस्वती ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कला और संगीत की अधिष्ठात्री हैं। हमारी चेतना का आधार देवी सरस्वती को ही माना गया है। भारत के कई हिस्सों में देवी सरस्वती की आराधना वागेश्वरी, वागदेवी, सरस्वती, भगवती और शारदा सहित कई नामों से की जाती है। वसंत पंचमी के साथ ही प्रकृति में कई परिवर्तन आने लगते हैं। हर ओर पीतांबर रंग छा जाता है। सनातन संस्कृति में पीले रंग को बहुत शुभ माना गया है, इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने की परंपरा भी है और खेतों में सरसों के पीले रंग के होने का यही प्रतीक है। भारत में यह त्योहार परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। यह दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन विद्यार्थी जीवन व्यतीत करने वाले देवी सरस्वती की आराधना कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। मैं यह कामना करता हूँ कि इस वर्ष भी यह त्योहार अपने साथ खुशियां लाए और इस वर्ष भी यह पूरे विश्व में ज्ञान और विवेक का संचार करे। देवी सरस्वती का आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे। सरस्वती चातां नौमी वागधुष्टा त्रिवेणतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदुनुग्रहतो जना। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, संयोजिका महोदया,
शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्र, मैं माही सिंह आज आपके समक्ष एक अनूठ विषय बसंत पंचमी पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। बसंत पंचमी का त्योहार हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूरे भारत में बड़े उल्लास से की जाती है। माँ सरस्वती की कृपा से बुद्धि, विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पर माँ के आशीर्वाद से अच्छी वाणी प्राप्त होती है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी की आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा एक दूसरा हाथ वज्र मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। वीणा माँ सरस्वती की प्रिय वस्तुओं में से एक है। मुझे आशा है आप सभी मेरे विचारों से सहमत हैं। इसी के साथ शुभ प्रभात, इसी के साथ धन्यवाद। आपका ध्यान is going to recite our poem. All that begins, meets and ends, every end onset, a new beginning. From the heart of autumn, rise the spring of spring. Audio 16, melody of a cuckoo within, on whom shower, romance of flower of spring, appearing pure, but which within. जिंदगी के हर इम्तिहान में आप पास हो, इतना शुद्ध व अच्छा वातावरण आप सभी के आसपास हो और आप जैसा सक्षम गुरु सभी के साथ हो। माँ सरस्वती का प्यार आप सभी लोगों के साथ हो। यह बसंत आप सभी लोगों के लिए इतना खास हो। धन्यवाद। विश्वरूपे विशालाक्ष विद्याम देव नमस्ते। ऐसे ज्ञान देगी माँ सरस्वती को कोटि साल नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आज का पर्व बसंत पंचमी ये प्राणी मात्र का पर्व है, ये जीव मात्र का पर्व है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का जन्म प्रकट किया था उस वक्त इसलिए किया था कि ब्रह्मा जी को लगा था कि हमारी सृष्टि में किसी की कमी है, और वो कमी है ध्वनि की, वो कमी थी संगीत की, वो कमी थी कला की। तब उन्होंने माँ सरस्वती का आवाहन किया और अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे माँ सरस्वती प्रकट हुई और जिसे उन्हें मन की मानस पुत्री भी कहा जाता है। माँ सरस्वती को बेटा ये सब आप बहुत कुछ जानकारी आज प्राप्त कर चुके हैं। हम सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना चाहते हैं कि ये बसंत पंचमी का पर्व किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक संप्रदाय का नहीं है। यह पर्व सब प्रत्येक जीव मात्र का है, और जीव मात्र में क्योंकि ध्वनि माँ सरस्वती सभी में एक समान प्रदान करती है, परंतु सिर्फ एक अंतर है मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाना चाहता है, उसे और अधिक विकसित करना चाहता है और विकसित करके लोगों में प्रदान करने की क्षमता रखता है। और जीव हैं, उन्हें जितना ज्ञान माँ सरस्वती ने दिया है वो उसी को सब कुछ मानते हैं और उसी के आधार पर अपना जीवन बिताते हैं, उसे बढ़ाना नहीं चाहते। परंतु मानव एक ऐसी जाति है, एक ऐसा जीव है, वो चाहे किसी धर्म में हो, किसी जाति में हो, किसी संप्रदाय में हो, किसी देश में हो, वो अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाना चाहता है, चाहे उसकी कोई उम्र हो। उसे गुरु चाहिए और किसी जीव को गुरु नहीं चाहिए। उसको जितना ज्ञान मिला है बहुत है। इसीलिए यह जो पर्व है ये ज्ञान देने वालों के लिए और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए इसका विशेष महत्व है। और उन्हीं की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती हैं, जो सभी के ऊपर कला के रूप में, विद्या के रूप में, संस्कृति के रूप में, म्यूजिक के रूप में, कला के रूप में, संगीत, ज्ञान, बुद्धि सब विकसित करती हैं। ऐसी माँ सरस्वती को मैं कोटि साल प्रणाम करती हूँ। और आप लोग भी आज के दिन हमसे यह संदेश ले कि अपना पेन चलाने से पहले कॉपी पर सबसे पहले जय माँ सरस्वती लिखें। जितनी बार लिख सकते हैं, जितना आवाहन कर सकते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा के बिना एक क्षण भी आप चल नहीं सकते हैं, किसी को जान नहीं सकते हैं। इसलिए माँ सरस्वती का आपके जीवन में बहुत महत्व है। और बाकी आप बहुत कुछ जान चुके हैं कि बसंत पंचमी का पर्व किसानों के लिए, शिक्षकों के लिए और सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
सब अपने अपने तरीके से मनाते हैं। कोई खुशी के इस पर्व को पतंग उड़ाकर मनाता है, तो कोई मिठाइयाँ बनाकर मनाता है, कोई माँ सरस्वती के पीले वस्त्र पहनकर, तो उनको पीला रंग पसंद है, कोई उनका मिष्ठान बूंदी, पीली बूंदी उनको पसंद है, उसका भोग लगाकर खाकर प्रसन्न करता है उन्हें। तो हर तरीके से सब बच्चे अपनी माँ को प्रसन्न करते हैं, और माँ के चाहे 4 बच्चे हों चाहे 10, वो सबको एक समान प्रेम करती है, अपना प्यार न्यौछावर करती है। इसीलिए माँ सरस्वती अपने प्रत्येक बच्चे पर बराबर अपनी कृपा बरसाती हैं। ऐसी कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, और आप बसंत पंचमी का त्योहार यूं ही मनाते रहे और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। इसके साथ 4 पंक्तियां आपके आगे कहना चाहूंगी। माता पिता का साथ हो, माता पिता का साथ हो, गुरुजनों का आशीर्वाद हो, माता पिता का साथ हो, गुरुजनों का आशीर्वाद हो, माँ सरस्वती की अनुकंपा हो, माँ सरस्वती की अनुकंपा हो, लक्ष्मी की कृपा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती की। बोलो जय माँ सरस्वती की। सरस्वती माँ की धन्यवाद। May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, friends. Happy birthday to you. How are you all? Our most respected Managing Director ma'am, respected teachers and dear students, on the occasion of Basant Panchami, I, on behalf of the school, wish you all happy Basant Panchami. My dear students, Basant Panchami is a day from that winter season over and the spring season started. बसंत पंचमी का अर्थ है शुक्ल पक्ष का 5वां दिन, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी और फरवरी और हिंदू तिथि के अनुसार माघ के महीने में मनाया जाता है। बसंत को ऋतुओं का राजा और सबसे श्रेष्ठ ऋतु माना गया है। इस समय पंच तत्व यानी कि जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं, और बसंत ऋतु का यही रूप प्रकृति को बसंत रंग में सराबोर कर जाता है, जिसके बाद बसंत पंचमी पर सब कुछ पीला सा दिखाई देता है, और ये पीला रंग ही संकेत देता है बसंत पंचमी का। हिंदुओं में पीला रंग जहाँ शुभ माना जाता है, तो वहीं पीला रंग शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक भी माना जाता है। ये सादगी देता है तो निर्मलता को भी दर्शाता है। बसंत ऋतु पर सरसों की फसलें खेतों में लहराती है, तो वो भी पीले रंग में सजी होती है। फसल पकती है और पेड़ पौधों में नई कपोले फूटती हैं, जो कि प्रकृति खेतों को पीले सुनहरे रंगों से सजा देती है, जिसे पृथ्वी पीली सी दिखाई देती है। और इसीलिए बसंत का स्वागत करने के लिए पहनावा भी विशेष होता है। वजह यही है कि जब पूरी धरती पीले रंग में नजर आती है, तो लोग इस दिन विशेष रूप से पीला ही पहनना पसंद करते हैं। केवल पहनावा ही नहीं, खाद्य पदार्थ में भी पीले चावल, पीले लड्डू और केसर युक्त खीर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को भी पीले रंग के ही फूल चढ़ाए जाते हैं।